करते हो, मैथमेटिक्स किस लिए स्टडी करा, ये नहीं कि मैथमेटिक्स क्वेश्चन लगाना बस रटना, ये नहीं है। वो आपको माइंड को ग्रोथ करता है। अभी आप लोग का एज है, सभी लड़कों का एज होता है, अभी आप लोग लगेगा कि जो चीजें पास में है वो चीज अच्छी है। हम लोग जब इतना बड़ा आए हैं, इतना बैकग्राउंड मतलब छोटे से उससे निकल के इतना बड़े तक गए हैं, हम लोग ने Please sit down. Thanks, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So, after a long time, meet my younger and handsome, dynamic, my younger brother, Engineer Dilip Kumar. So, he will interact with you. So, you all you have to cooperate with him. And if you have any doubts regarding your study, regarding your future career, regarding anything about your future scopes, you can ask him. Okay? So, I am hand over the mic to the Engineer Dilip Kumar, sir. थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून गाइज, Good afternoon, sir. हाउ आर यू? I'm fine. What about you? आई एम आल्सो फाइन। एनीवन गेस हु आई एम? Yes. Yeah, you know, I'm younger brother. Yes, sir. Yes. So we are going to start our life basis questions like any guidance, motivations, anything else. My name is Dilip Kumar. I'm a civil engineer. I'm going to interact with you today. Let's enjoy. You see, okay? You everyone give a short introduction. Please start. Anmol Pandey. Anmol Pal. In which class is you study? Ninth. Yes, sit down. Next. My name is Shivam Kashyap. I study in class 9th. Okay, thank you. My name is Arun Sinhaspur. I am studying class 9. My name is Vrindavan. I study in class 9th. My name is Akash Adhu. I am studying class 9 and from Ravishamar School. My name is Sumesh Pandey from class 9 from the 7th school. Okay. My name is Anusha Sharma. I study in class 9B. Okay. My name is Priyanshu Gupta. I study in class 9B. My name is Deepa Ansari. I am studying 9B. My name is Deepika Kumar. I study in class 9B. Okay, thank you. You? My name is Amir Yadav. Now I am pursuing my class in class 9B at the Ravishamar School. My name is Adar Yadav. I study in class 9B. Okay. Thank you, everybody. So he is civil engineer, you know already. Okay. So like how your study going on, what's your future scope, whatever the things. So you can ask with him. He will interact with you, and if you have doubt, he will address you. Okay. Okay. Anybody, anything else? Ask any. You can ask me like your subjects, any field, what you want to do in your future. Then you can share me. Actually, This is the not way they will tell you by their own. You have to pose. You have to point out them. Then they will speak. okay. I think everybody liking with confidence. No worry. He is my younger brother. You can interact. You can ask or you can share whatever the things. Currently he is Correct. working in Bangalore. And you are doing your job. Foxconn लिमिटेड, ये चाइना कंपनी है, वहाँ आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का वहाँ प्रोडक्ट बन रहा है। वहीं पे हम लोग का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम इसके पहले आपने कहाँ काम किया सर? है। लास्ट माई साइड इज कोटा, राजस्थान। ऑल्सो वर्किंग दिस इज माई थर्ड कंपनी। Okay. Actually, Which books and how many books need to crack IIT JEE advance? IIT JEE Advance, you need to crack. First, you have to book. 75% in the Yes, that is the percentage basis. Must you have to take at least 75% then you can. Okay, no problem. बुक नेम कोई कंफर्म नहीं है कि आपको इसी बुक से पढ़ना है तो आएगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म या आफ्टर 12th you have to at least self study and you take some platform. आपको IIT क्लियर करने के लिए आपको खुद से स्टडी ज्यादा करना पड़ेगा। कोई भी प्लेटफॉर्म आपको ये नहीं कह सकती कि हम आपको IIT करवा देंगे। आपको IIT करने के लिए फर्स्ट आपको मोटिवेशन होना चाहिए, आपको टारगेट होना चाहिए, हमको IIT ही करनी है। So sir, which is and which class is best for preparation IIT JEE advance? At least you have to come start 11th minimum. 11th से अगर आप स्टार्ट So करते हैं। sir, which book I took to prepare for it? Which book we cannot say any prefer any. For IIT JEE, if you want to do, so there is no specific book for that. Yes. You have to prepare with NCERT, physics, chemistry, and mathematics, 3 subjects. You have to go inside the concept. You have to take reference book. Whatever the writer, that book's writer will not bother you. Okay. You have to take the proper book that help you.
You can take help from the coaching also if you are capable, if you are that much capable that your parents support some amount for the coaching preparation, then you can take help from there So also. it means that I focus on 11th and 12th. Yes, that is the base. Yes, yes. See, in IIT JEE, they are saying that NTA is hosting that competitive examination. JEE mentioned it about. So their syllabus is class 11th and 12th. That is the thing. But the concept is little deeper. Okay, carry on, sir. ओके, तो सिविल बहुत से आईआईटी में भी सीएस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, लाइक दैट। Sir, after IIT means that is good for our national degree. आईआईटी आप जैसे आप क्या है, हम लोग का सिविल है, ये क्या फील्ड वर्क होता है। सिविल लोगे तो आपको ऑफिस वर्क मिलेगा, मैकेनिकल लोगो वो भी ऑफिस वर्क रहेगा। Sir, इसकी डिमांड ज्यादा है। अभी तो सीएस का चल रहा है एक्चुअली, बट सीएस में क्या है, आपको इनसाइड बिल्डिंग के अंदर काम करेगा, ऑफिस वर्क रहेगा। एज यू इंटरेस्ट, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, सभी में है, सभी का स्कोप है। ऑल आर ब्रांचेज आर गुड एज योर लिमिट। सिविल में ज्यादा मतलब गवर्नमेंट की वो आती है, मैकेनिकल भी होती है, कम होती है। सिविल की स्कोप ज्यादा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन कभी बंद नहीं होगा, ये ऐसा चीज है। ऑल इंडिया, ऑल कंट्री ऑलवेज कंस्ट्रक्शन गोइंग, सो कंस्ट्रक्शन नहीं बंद होगा। कंस्ट्रक्शन तब और ज्यादा आता है, और सीएस के लिए क्या बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं। हम लोग जो बिल्डिंग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो क्या सभी उसके अंदर सीएस के काम में होंगे। बिल्कुल। सभी उसके अंदर सीएस, पूरे कहीं प्रोग्रामिंग चल रहा है, कहीं पार्ट फिटिंग चल रहा है, सी और पूरी इलेक्ट्रिकल भी चलेगी क्योंकि उसके अंदर ऑल कनेक्शन होंगे। तो सभी का स्कोप है, आपको इंस्टेट के ऊपर वो डिपेंड करेगा क्या चीज आप करना चाहते हैं। Sir, in IIT, computer is compulsory. In which every any branches you have to take basics knowledge of computer. Sir, what if I don't know about a computer? So, No, you have to learn. Without system, you cannot do any work. Me also in civil engineering, we doing field work, but also coming and updating everything, doing mail, everything, what to carry, what I'm do, what not to do, and why not. Everything updated on mail, Excel. You have to know at least basics compulsory. See, my computer was also weak during my engineering. So when I was joined Vedantu, so at that time I have also learned lots of things, because in any job the system. See, now the written work is not anywhere. You have to update your report card, your everything on the system. You have to communicate with your seniors, with your top management. You have to report everywhere what the thing is going on. You have to make a proper report for that thing. So basic knowledge you should do. If you are going in mechanical or in civil engineering, architecture, or designing, then much knowledge you have. We have studied both that AutoCAD during my engineering, AutoCAD, CATIA, SolidWorks, that on system you can design the program, design the parts. Like I am a mechanical engineer, so I have to design the vehicle parts. If we talk about the automobiles, like how the gear system, how the differential is working, lots of things is there. Same in the civil engineering. sir, so where you complete your civil engineering? Yeah, I'm completed. Now I'm in Bangalore, that good company. Actually, if you want to do engineering, you have to confidence. Being a engineer, you can survive anywhere in the world if you are engineer, because engineer know everything. बीटेक के 4 ईयर में हम लोग को मतलब क्या नहीं पढ़ाया जाता है, सभी आपके लाइफ से रिलेटेड, मतलब फिजिक्स साइकोलॉजी तक पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में ना आपको कोई सिर्फ घर बनाया सिखाया जा रहा है, कैसे बनता है, क्या होता है, ना कि गाड़ी बनाना सिखाया जाता है, ना कि करने जो भी ब्रांच चाहिए, नहीं कि सिर्फ वही स्पेसिफिक रहेगा। इंजीनियरिंग का फील्ड बहुत लंबा होता है, आपको हर एक चीज का नॉलेज दिया जाता है। फर्स्ट ईयर में सबका कॉमन सब्जेक्ट होता है, सबका कॉमन इसलिए कि हर एक सब चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको सेकेंड ईयर से डिवाइड हो जाता है कि आपको क्या करना है, जिस फील्ड के होंगे वो ज्यादा प्रीफर किया जाएगा, बाकी और चीजें भी सिखाई जाती हैं। सो कंफ्यूज मत होइए, आईआईटी भी ऐसा नहीं चीज है। आईआईटी आप करिए, लेकिन आईआईटी में भी सेम कोर्स होंगे, वहाँ क्या थोड़ा टीचर अच्छे होंगे, सेम वही चीजें होती हैं, वहाँ थोड़ा उसका ज्यादा कम कॉलेजेस हैं। हाँ, इसके लिए आईआईटी प्रीफर करिए, अपना कॉन्फिडेंस रखिए। कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है आईआईटी के लिए, आपको पीसीएम पे ध्यान देना पड़ेगा। आगे जाना है तो बेसिक्स कंसेप्ट होनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा टीचर क्या गाइडेंस दे देता है, बुक क्या कोई गाइडेंस दे देती है, हाँ, बाकी करना आप ही लोगों को है। अभी आप लोगों का एज है, सभी लड़कों का एज होता है, अभी आप लोगों को लगेगा कि जो चीजें पास में है वो चीज अच्छी है,
हम लोग जब इतना पर आए हैं, इतना बैकग्राउंड मतलब छोटे से उससे निकल के इतना बड़े तक गए हैं, हम लोग ने एक एक फेज को स्ट्रगल किया है। तो अभी आप लोगों को उस समय हम लोग को ऐसा लगता था कि थोड़ा जो आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप फ्रेंड सर्कल है, हाँ फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स में अगर 3 ग्रुप 2 ग्रुप के बच्चे गए, दोनों को पढ़ाई मतलब इतनी जरूरी है ना कि क्या बताए, मतलब इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए आप स्टडी करते हो, मैथमेटिक्स किस लिए स्टडी करा, ये नहीं कि मैथमेटिक्स क्वेश्चन लगाना बस रटना, ये नहीं है। वो आपको माइंड को ग्रोथ करता है। आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा लगिए रखिए। और देखिए अभी क्या होता है ना, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। आप किसी के साथ फाइट कर लो, किसी के साथ लड़ाई कर लो, स्टडी मेन है। और पेरेंट्स क्या है, वो सिर्फ आपके ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, वो आपके साथ नहीं रह सकते हैं। आपको कहाँ जाना है, आपका बिहेवियर कैसे रखना है, हाँ ये सब आपके ऊपर डिसाइड करेगा। फ्रेंड थोड़ा अच्छा लगिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसमें अगर आपको ऊपर जाना है, हम लोग देखते हैं काम कराते हैं, लेबर क्लास के बच्चे जो आते हैं, हाँ लोअर क्लास के जो वर्क करते हैं साइड पे, एक्चुअली जो हम लोग लेबर होते हैं, मैन पावर होते हैं, जो काम करते हैं, उन लोग से मैं एक लड़के से पूछा, एक बंदा क्या किया था, बीएससी करके आया था। बीएससी किया हुआ बच्चा है, वो भी किससे कि केमिस्ट्री से करके रखा था, बीएससी कंप्लीट था। मैं उसको थोड़ा काम कर रहा था, तो देखने में लग जाता कि कौन बच्चा कैसा है। मैं उसको बुलाया, इधर आओ। आया ऐसे, बोला हाँ सर बोलिए क्या है। तो तुम ऐसे ऐसे ये कर रहे हो। मैं मशीन सेट किया, एक्चुअली ऑटो लेवल सेट करना होता है, उसमें 3 स्क्रू होता है, उसको घुमाकर 5 से 10 सेकंड में सेट हो जाती है। वो एक बार सिर्फ बंदा देखा, अगले टाइम मैं पूछा उसको मशीन से यहाँ शिफ्ट करके यहाँ लगा, वो लगा के बदला, वो सेट कर दिया। मैंने कहा कि किसने किया, मैंने किया। मैं बोला तुमको आता है, नहीं आता, कैसे किया सर, आप एक दिन सेट करे तो मैंने देखा था। मैं पूछा पढ़ा सर, बीएससी किया। एक्चुअली वो बंदा बंगाल साइड का था। मैं उसको पूछा कि फिर यहाँ वर्क करने क्यों आ गया, तो सर फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है, इसके लिए मम्मी पापा ने बोल दिया कि जाओ जॉब करो। इसके लिए अब बताओ बच्चा का क्या बीएससी करके रखा है, बीएससी कंप्लीट करना केमिस्ट्री से भी बहुत टफ होता है, कोई केमिस्ट्री नहीं सिलेक्ट करता है। लेकिन वो बंदा से मैं पूछा क्यों आया, जाकर तुमको आगे पढ़ाई करना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट के लिए देखो। तो क्या फैमिली बैकग्राउंड उसका सही नहीं था, इसके लिए वो बच्चा आ गया था। अब आप लोग तो फैमिली बहुत अच्छी होगी, अभी पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो क्या आगे तक जा सकते हो। तो इसलिए आप जितना पढ़ाई पर फोकस करते हो, कहीं ना कहीं सेटल हो जाओ लाइफ में। क्या बहुत बहुत इंजीनियर भी आते हैं हम लोगों के पास से, जो किए हुए होते हैं कहीं से, उन लोगों का लाइफ बिल्कुल खराब है, ऐसे ऐसे आते हैं बंदे। आप लोग बहुत सेटल हो, बंगाल से जो बच्चे आते हैं काम करते हैं, अभी सेटल हो जाओगे तो हो जाओगे। पढ़ाई कैसे भी करके सर पढ़ाते हैं, मान के अभी मौज मस्ती करने का टाइम, मौज मस्ती करो लिमिट में, किसी काम का लिमिट होना, पढ़ाई करना। हाँ फर्स्ट आपका इस समय टारगेट होना चाहिए स्टडी। सर अगर कुछ दे रहे हैं उसको कंप्लीट करो, या स्कूल में आपके जो भी है टारगेट है, हाँ वो चीजें कंप्लीट करो। अभी आप लोगों को मौज मस्ती लगेगा, लेकिन उस चीज को थोड़ा ध्यान दो और स्टडी फोकस करो, क्योंकि आगे चल के ये स्टडी काम आएगा। कोई भी आपके कोई अभी आप लोग दो लड़के रहते हैं, जैसे मान के लिए क्या होता है, एक के चक्कर में एक खराब होता है, एक के चक्कर में एक खराब होता है, ठीक है। वो फ्रेंड सर्कल जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ना, वो सब दूर चलते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा फ्रेंड है। हम लोग कॉलेज लाइफ में कितने बच्चे थे, अभी तक 4 या 5 ईयर हो गया, अभी तक मीट नहीं किया। अब क्या होती है, कॉल पे भी बहुत कम बात होती है। बाई चांस कभी 6 मंथ में उसको कुछ काम होगा तो मेरे पास कॉल करेगा, मेरे को काम होगा तो मेरे को कॉल करूंगा, दैट्स इट। फ्रेंडशिप के चक्कर में, हाँ फ्रेंडशिप अच्छी है, साथ में है, पढ़िए, कुछ पढ़ाई के लिए हेल्प करिए, या नहीं कि घूमने जा रहे हैं किसी को लेकर जा रहे हैं, हाँ इसके चक्कर में उसके चक्कर में ऐसे लाइफ बर्बाद नहीं करना। इस समय पढ़ाई ही जरूरी है। और इस टाइम में एआई के टाइम में क्या हो रहा है, धीरे धीरे मैन पावर कम होता जा रहा है। सभी काम मतलब मैक्सिमम काम अब सब मशीनरी कर रही है। इसके लिए आप लोग को जब स्ट्रांग नहीं बनाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, वो नहीं कर पाओगे। स्टडी बहुत जरूरी है। और एक से एक बच्चे हैं, आप लोगों को लगता है कि हम बहुत पकड़ने में क्लास में तेज हैं, आप इस स्कूल से निकल कोई स्कूल में जाओ, फिर पता चलेगा। मैं राजस्थान में था, मेरे को लगा मैं बहुत आता है मेरे को, मैं सभी काम सीख गया इंजीनियरिंग का, मैं गुड हूँ, अच्छा हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस था। यहाँ से बेंगलोर गया, बेंगलोर देखा बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े गाड़ियाँ। वहां जब देखोगे ना, आप जैसे बाइक से चल रहे, कोई कार लेकर घूम रहा है आपसे कम एज में, मैं से कम एज में, मेरा अगर कोई सीनियर बन गया, मैं क्या यार ये तो मेरा जूनियर है, मेरा सीनियर बन के काम कर रहा है। लेकिन क्या उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, वो क्वालिटी होगी, कहीं ना कहीं वो मुझसे बेहतर किया होगा। इसलिए आप खुद के ऊपर काम करो, ये चीजें हैं, आपकी क्या कमियां हैं आप जान सकते हो, उस पर काम करो। थोड़ा फ्रेंड सर्कल अच्छे रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है लाइफ, दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू।